So the question here is, for the circuit shown below with ideal diodes, the output will be option A, V out is equal to V in for V in greater than 0. Option B, V out is equal to V in for V in lesser than 0. Option C, V out is equal to minus V in for V in greater than 0. Option D, V out is equal to minus V in for V in lesser than 0. और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2022 फॉर 1 मार्क फॉर इलेक्ट्रिकल एज ए एमसीक्यू ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर आप इस सर्किट को देखेंगे ध्यान से, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था फॉर द इलेक्ट्रिकल बेस्ड ऑन द डायोड। सो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल दिस बोथ द डायोड इज कंडक्टिंग, और जैसा कि यहाँ पर मेंशन है कि ये आइडियल डायोड है। सो इन पॉजिटिव हाफ साइकिल बोथ द डायोड विल बी एक्टिंग हेयर एज ए शॉर्ट सर्किट। This will be also acting here as a short circuit, और करंट यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। सो वाट एवर वी विल हैव दिस V इनपुट वोल्टेज, दिस इंटायर वोल्टेज विल अपीयर विद द सेम पोलरिटी टू दिस R1 एज ए V आउट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 and D2 both are on and act as short circuit. So we can say that this V output is equal to V input for V input greater than 0। इसका मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे थे। अब अगर इसी तरीके से नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे, सो जैसे कि आइडियल ऑफ द डायोड है, बोथ द डायोड विल बी ओपन सर्किटेड एंड बाय दैट टाइम नो करंट इज पासिंग थ्रू दिस R1, सो दैट वोल्टेज अपीयर्ड अक्रॉस R1 विल बी 0। इट मीन्स V आउटपुट इज ऑल्सो 0। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल D1 and D2 both are in off state, so due to that this I is equal to 0, and ultimately we can say that this V output is equal to 0 by that time। तो यहाँ पर मेनली हमको क्या मिला, V output is equal to V in for V in greater than 0, and this is matching with option A. So option A is the right answer for this question, and by this way this is the end of the explanation for this question. So the question here is, the current gain I out by I in the circuit with an ideal current amplifier given below is option A CF by CC, option B minus CF by CC, ऑप्शन C CC by CF, ऑप्शन D minus CC by CF। और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2022 फॉर इलेक्ट्रिकल फॉर 2 मार्क्स एज ए MCQ ऑफ द क्वेश्चन। तो जैसा कि यहाँ ये फिगर में मेंशन है, दिस इज इनफाइनाइट, सो दिस इज शोइंग दैट इट इज एन आइडियल ऑफ द ऑप-एम्प। सो एज पर देयर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ऑप-एम्प, दिस इज गिवन हियर V प्लस इज इक्वल टू V माइनस, और यहाँ पर एज पर द डायरेक्शन ऑफ दिस I out, द पोलरिटी ऑफ दिस CC विल बी प्लस here and this side it will be minus, and as per the direction of this I in, the polarity of this CF will be plus here and this side it will be minus। अगर हम इस op-amp के आउटपुट को एज्यूम करते हैं एज ए V output, so now we can write down this impedance offered by this CC in terms of Laplace. This can be given here as a 1 by S CC, and this can be given here as a 1 by S CF। तो यहाँ पर I output का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, so this I output is equal to voltage across the capacitor, so that voltage will be V0, so this is here VO divided by 1 by S CC, so this can be written as VO into S CC। Let's see this as equation number 1। अब यहाँ पर देखिए V प्लस पर का यहाँ पर का पोटेंशियल अगर 0 वोल्ट है, सो दिस पोटेंशियल विल बी ऑल्सो 0 वोल्ट, सो द वोल्टेज अपीयर्ड अक्रॉस दिस CF इज ऑल्सो V0।
तो यहाँ पर आई इन का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। तो आई इन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो आई इन का इक्वेशन होगा दिस आई इन इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाय 1/s CF. So this can be written as V naught S CF. Let's say this as equation number 2. अब यहाँ पर पूछा क्या है, current gain I out by I in. So now we need to divide this equation 1 by equation 2. तो हम लोग को मिलेगा this I out divide by I in as a current gain is equal to V naught cancel हो जाएगा, S cancel हो जाएगा. So this can be written V naught S CC divide by V naught S CF. So this V naught cancel, S and S cancel. So we will get it here as a CC by CF. So this current gain is equal to CC by CF, and this is matching with option C. So option C is the right answer for this question, and by this way this is the end of the explanation for this question. So the question here is, for an ideal MOSFET biased in saturation, the magnitude of the small signal current gain for a common drain amplifier is option A 0, option B 1, option C 100, ऑप्शन डी इनफाइनाइट. और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2022 फॉर इलेक्ट्रिकल फॉर 1 मार्क एज ए एमसीक्यू ऑफ द क्वेश्चन. और यहाँ पर ये इसका एसी इक्विवेलेंट ऑफ कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर सर्किट दिया हुआ है. और हम लोग जानते हैं फॉर आइडियल मॉसफेट देयर गेट करंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, एंड फॉर कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर देयर इनपुट इज गिवन टू द गेट टर्मिनल एंड आउटपुट इज कलेक्टेड एट देयर सोर्स टर्मिनल. और यहाँ पर ड्रेन करंट इज इक्वल टू सोर्स करंट होता है. तो हम लोग जानते हैं कि एज पर द डेफिनेशन ऑफ द करंट गेन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट गेन इज गिवन हेयर एज ए आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट. सो आउटपुट करंट विल बी IS एज ए सोर्स करंट, एंड इनपुट करंट विल बी द गेट करंट एज ए IG. सो फॉर आइडियल MOSFET, their gate current is almost equal to 0. So now we will substitute this IJ is equal to 0 in this equation 1. So we will get it here. This AI as a current gain is equal to IS divided by 0. So this is equal to infinite. So we can say that for an ideal MOSFET biased in saturation, the small signal current gain for common drain amplifier is given by AI is equal to infinite. So this is matching with option D. So option D is the correct answer for this question, and by this way this is the end of the explanation for this question. So the question here is, the steady state output as a V out of the circuit shown below will option A saturate to plus VDD, option B saturate to minus VEE, option C become equal to 0.1 volt, option D become equal to minus 0.1 volt. और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2022 फॉर 1 मार्क फॉर इलेक्ट्रिकल एज ए MCQ ऑफ द क्वेश्चन. तो बेसिकली ये हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट है, और एज पर द आइडियल ऑफ द ऑप एम्प वी नो दैट their voltage at non-inverting terminal and inverting terminal both will be same. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हमारा R2 से कनेक्टेड है थ्रू दिस ग्राउंड. सो दिस वोल्टेज विल बिकम हेयर एज ए 0 volt, and for the ideal of the op amp their input current is almost equal to 0. So no current is passing through this side, no current is passing through this side, and as per the ideal of the op amp this node voltage will be also 0 volt. So for the ideal of the op amp V plus is equal to V minus. तो यहाँ पर जब भी हमारा 0.1 वोल्ट के कारण जो भी करंट पास होगा, so that current will be passing through this R1, so that I can say it here as a I1, and the same current is passing through this capacitor C1 as a I2. No current is passing through the input terminal of this ideal of the op amp. So यहाँ से कोई भी करंट नहीं जाएगा, इधर से कोई भी करंट हमारा पास नहीं होगा,
और यहाँ पर ये जो I2 करंट है थ्रू दिस कैपेसिटर C1, सो द वोल्टेज appeared across the capacitor will become like this side polarity will be plus, this side will be minus, और यहाँ पर इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमारा 0 वोल्ट से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर इज नथिंग बट V out. So for this capacitor their voltage as a capacitor voltage VC is equal to minus V out, और इसको हम लोग लिख सकते हैं minus V naught. So यहाँ पर from this configuration we can write it here, I1 is equal to I2, I1 is equal to I2. So I1 क्या हो जाएगा, तो I1 होगा हमारा 0.1 वोल्ट माइनस 0 डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू, जो यहाँ पर कैपेसिटर से करंट पास होगा तो उसके बारे में हम लोग लिखेंगे. सो डैट विल बिकम हियर माइनस C1 इंटू dV0 बाई dt. ये माइनस साइन क्यों आया है, क्योंकि कैपेसिटर का वोल्टेज है VC इज इक्वल टू माइनस V0. तो यहाँ पर जनरली जो कैपेसिटर के थ्रू करंट का इक्वेशन होता है वो होता है C dVC डिवाइड बाई dt. सो VC इज इक्वल टू माइनस V0, तो इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आया है. सो डैट इज इक्वल टू माइनस C1 इंटू dV0 बाई dt. अब यहाँ से हम लोग dV0 बाई dt लिख सकते हैं. सो दिस dV0 बाई dt इज इक्वल टू माइनस 0.1 डिवाइड बाई R1 C1. इसको हम लोग फिर से रीराइट कर सकते हैं. dV0 इज इक्वल टू माइनस 0.1 divided by R1 C1 into dt. Now if we'll integrate on both the side, तो हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में ये हो जाएगा V0 is equal to minus 0.1 डिवाइड बाई R1 C1 into इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा, सो डैट विल बिकम हेयर एज ए t. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 0.1 इंटू टी बाई R1 C1. तो यहाँ पर पूछा है स्टेडी स्टेट आउटपुट एज ए V out. सो स्टेडी स्टेट में T क्या हो जाता है, सो इन स्टेडी स्टेट दिस T टेंस टू infinity. So when this T tends to infinity, then by that time this V output tends to minus infinity. So ये infinity क्या होता है, तो फॉर द आइडियल ऑफ द डायोड और इवन फॉर द प्रैक्टिकल ऑफ द डायोड आउटपुट वोल्टेज कभी भी हमारा सैचुरेशन वोल्टेज से ज़्यादा, इसका मतलब है कि प्लस VDD से ज़्यादा या माइनस VEE से कम नहीं हो सकता है. तो इसीलिए यहाँ पर ये जो इनफाइनाइट है वो इंडिकेट करता है कि दिस ओपैम्प इज गोइंग टू बी सैचुरेटेड, और माइनस साइन इंडिकेट करता है दिस इज गोइंग टू बी सैचुरेटेड एट द नेगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज. सो ड्यू टू दैट रीजन दिस V आउटपुट विल सैचुरेट टू minus VEE, so that is called negative saturation voltage. So this is matching with option B. So this V out will saturate to minus VEE. So option B is the right answer for this question, and by this way this is the end of the explanation for this question. So the question here is the output impedance of a non-ideal operational amplifier is denoted by Z out full stop. The variation in the magnitude of Z out with increasing frequency F in the circuit shown below is best represented by. So ये यहाँ पर ओपैम्प का सर्किट दिया हुआ है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर Z out वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है वो चारों ऑप्शन में दिया हुआ है. तो कौन सा सही होगा वो हमको फाइंड आउट करना है. एंड दिस क्वेश्चन दे हैड आस्क्ड इन गेट 2022 फॉर इलेक्ट्रिकल फॉर 2 मार्क्स एज ए MCQ ऑफ द क्वेश्चन. तो यहाँ पर ये जो ओपैम्प का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज ए वोल्टेज सीरीज. दिस इज कॉल्ड वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर विथ बीटा इज इक्वल टू 1. हाउ दिस बीटा इज 1, सो ये पॉइंट पे हम लोग VF को मेजर करते हैं फीडबैक वोल्टेज. सो दिस फीडबैक वोल्टेज इज गिवन एज VF इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज एज ए V0. सो बीटा क्या हो जाएगा, VO by VF. And if you'll see that here as per this connection this V out is sorted with this VF, so this VO and VF both will be same, so that this beta is equal to 1 here. अब हम लोग जानते हैं कि Z out is equal to Z0 divided by 1 plus A beta.
where Z0 is the output impedance without feedback. Z out is the output impedance with feedback. A is the gain of this op amp without feedback, that is called open loop gain, and this beta is called as a feedback factor. So if beta is equal to 1, then this Z out will become Z0 divided by 1 plus A. अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये जो ग्राफ है जो रेड कलर से ड्रॉ किया गया है, सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन गेन इन डीबी वर्सेस फ्रीक्वेंसी इन द लॉगरिथम फॉर द ओपन लूप एम्पलीफायर. सो ये हमारा ओपन लूप ओपैम्प का हमारा ग्राफ दिया हुआ है. तो अगर आप फर्स्ट रीजन में देखेंगे कि ये एफ नॉट हमारा क्या है, ब्रेक फ्रीक्वेंसी है. सो इन दिस फर्स्ट रीजन देयर गेन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. सो अगर फर्स्ट रीजन में गेन हमारा कांस्टेंट है फॉर दिस ओपन लूप ऑफ द ओपैम्प, तो जेड आउट क्या हो जाएगा, तो सो दिस जेड आउट विल बी डिक्रीजेज बाय 1 प्लस ए टाइम्स. सो जेड नॉट के रेस्पेक्ट में जेड आउट हमारा कम होगा बाय द अमाउंट ऑफ 1 प्लस ए. So this is matching with option C. So in this region, if you'll see that if this is the replica of this like this is the mapping of the first region from this red color to this part. So this is the first region. तो यहाँ पर हम लोग देखें कि जब हम लोग ये आउटपुट इम्पीडेंस मेजर कर रहे हैं विथ फीडबैक, देन इट इज डिक्रीजिंग कंपेयर टू जेड नॉट बाय द अमाउंट ऑफ 1/1 प्लस ए. अब उसके बाद सेकेंड रीजन में देखते हैं कि यहाँ पर जो इसका गेन है वो डिक्रीज किया है बाय 3 dB एंड एट दैट पॉइंट इट इज गिविंग देयर बैंडविड्थ एज ए एफ 3 dB. तो यहाँ पर जब गेन हमारा डिक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा या बैंडविड्थ इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पर गेन डिक्रीज करेगा. सो इफ ए इज डिक्रीजिंग, दिस इज गिविंग हियर द आइडिया अबाउट दैट Z out will be increasing. So output impedance with feedback with respect to frequency, this will be increasing. So this is mapping to second region. This is the mapping of second region. अब उसके बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हमारा लार्ज होते जाएगा, सो इफ दिस फ्रीक्वेंसी इज वेरी वेरी लार्जर, देन बाय दैट टाइम एज वी नो दैट गेन इनटू बैंडविड्थ इज कांस्टेंट. सो जब बैंडविड्थ बहुत लार्ज होगा तो ए बहुत स्मॉल होगा, मतलब ओपन लूप गेन हमारा बहुत ही स्मॉल होगा. सो बाय दैट टाइम इफ द गेन इज वेरी वेरी स्मॉल और इफ ए अप्रोचेज टू जीरो, then this Z out is approaching to their maximum value. Z out is approaching to their maximum value as a Z naught. So by that time this is mapping to this third region in this way. So ये हमारा third region है. So from this graph, like the graph which is drawn with the red color is mapped to this option C graph. So by that way I can say that option C is the right answer for this question. And by this way, this is the end of the explanation for this question.